फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आप आजकल 30 सितंबर की क्लोजिंग में बहुत व्यस्त होंगे, और इस क्लोजिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ और आज का लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट मैं आपको देता हूँ। पहले ये क्लोजिंग जून और दिसंबर के महीने में होती थी। मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था, इट वाज इन द ईयर 1977, तो ये क्लोजिंग जून दिसंबर में होती थी और सारा काम मैनुअल होता था। और सबसे बड़ी बात कि हर एक ट्रांजैक्शन फिजिकल बुक से होकर गुजरती थी। बैंकर आसानी से समझते थे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, क्योंकि एक साइड में डेबिट करते थे तो तुरंत दूसरे साइड में क्रेडिट करते थे। आज ये सारा काम सिस्टम करता है और बैंकर्स को ये समझ नहीं आता है कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। पहले सारे ट्रांजैक्शंस, अब आता है क्लोजिंग से रिलेटेड जो मेमथ एक्सरसाइज होती थी इन दोज डेज, वो होती थी इंटरेस्ट एप्लीकेशन। एवरी सिंगल अकाउंट में डिपॉजिट एज वेल एज एडवांस अकाउंट्स में हम लोग बड़ा देर रात तक बैठ कर इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू मार्च एंड सितंबर। तो हम लोग इस महीने के शुरू में ही, जैसे आजकल जब मार्च और सितंबर में शुरू हो गई थी क्लोजिंग, तो पहली दूसरी तारीख से ही इंटरेस्ट एप्लीकेशन का काम शुरू हो जाया करता था और देर रात तक बैठ के ब्याज लगता था लेजर्स में। एवरी सिंगल अकाउंट इन डिपॉजिट साइड, एवरी सिंगल अकाउंट ऑन द एडवांसेस साइड, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसको पोस्ट करना, उसकी चेकिंग होना और सारा बैलेंसेस को टैली करना, ये एक मेहनत एक्सरसाइज होती थी। आजकल सब काम सिस्टम से ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं देखता हूँ ब्रांचेज में कि क्लोजिंग का काम लास्ट के 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाता है। अभी सितंबर में आपका आज 28th, 29th, 30th it will be over. Interest application all automatic on deposit accounts as well as on advances accounts. All other operations all done by the system. So you need to focus on your business development only these days. So the bank has undergone a sea change, and now you can handle a very high volume of business because of the computerization, which was very difficult or very challenging in our days. So this is the historical background of the closing. In very brief, I have shared with you. The purpose of this video today is to update you on a latest circular of RBI, which has been issued on 25th of September 2023, and the title is Disclosure of the Information with respect to the secured assets possessed by the regulated entities. फोकस कहाँ पर है? डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है? It has to be disclosed by all the regulated entities. और for this purpose, ये regulated entities कौन कौन सी हैं? Regulated entities are all commercial banks, including small finance bank, local area banks, regional rural banks, but excluding payment banks. Now the question may arise in your mind, why the banks have been excluded? Because they are not
allowed to provide credit facilities. And when they cannot provide credit facilities, they cannot invoke SARFAESI action against the borrowers because there are no borrowers. So it is applicable to commercial banks, small finance bank, regional rural banks, local area banks, but not to the payment banks. And second category of rural this regulated entities, वो क्या है? उसमें आते हैं सब आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स. Entire structure is under regulation of RBI these days, so the circular is applicable to them also. Third category, all India financial institutions like Exim Bank, NABARD, and we have got National Housing Bank, NHB, SIDB, we have got NAB FID these days, National Bank for Financing Infrastructure and Development, NAB FID. It is a new development financial institution which has been added to this list, NAB FID. And I have my videos on this on my channel. If you will go back, the bank was established in 2021, I think. So if you will go back to 2021, you will find videos on NAB FID also. And the last category is, last two categories you can say, non-banking financial companies, NBFCs, all NBFCs, including housing finance companies and all asset reconstruction companies, ARCs, जिनको हम अपने NPAs बेच देते हैं. ARCs का काम यही है, हमारी बैलेंस शीट को क्लीन करते हैं वो, और क्लीन करने के बाद में रिकवरी एफर्ट्स वो खुद करते हैं और हम अपने NPAs उनको बेच देते हैं, बाकी फिर उनका हेडेक बन जाता है. तो ये सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं. अब जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, वो रिलेट करती है उन बोरोवर्स को, ऑल दोज बोरोवर्स जिनके सिक्योर्ड एसेट्स अंडर सरफेसी एक्ट रेगुलेटेड एंटिटीज़ ने अपने पोजीशन में ले लिए. इन सब ने अंडर सिक्योरिटी सरफेसी एक्ट 2002 सिक्योर्ड एसेट यानी जो एसेट हमारे चार्ज में थे, मूवेबल और रिमूवेबल बोथ, उनको अपने पोजीशन में ले लिया है. ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को. और कहाँ डिस्क्लोज करना है इनको? अब ये लिस्ट जिनके सिक्योर्ड एसेट्स हमारे लेंडर्स ने, जिनका नाम ऊपर मैंने दिया, रेगुलेटेड एंटिटीज़ ने अपने पोजीशन में लिया है अंडर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट मीन सरफेसी एक्ट 2002, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है. और पहली लिस्ट, इस सर्कुलर की डेट जो है 25 सितंबर 2023, उसके विद इन 6 मंथ्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देनी है. यानी 25 मार्च 2024 तक इनको टाइम है, पहली लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. और इसके बाद एवरी मंथ दिस लिस्ट हैज़ टू बी अपडेटेड. तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है. अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है बैंकिंग इंडस्ट्री पर? एक्चुअली इसके पीछे ऑब्जेक्टिव आरबीआई का ये है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए और सभी बैंकर्स को ये पता चल जाए कि ये वो बोरोवर्स हैं जिनके सिक्योर्ड एसेट्स पोजीशन में ले लिए गए हैं अंडर सरफेसी एक्ट बाय सम और दी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक्स एंड NBFCs. तो ये जब इम्पैक्ट आएगा तो एक तो फर्दर फ्रॉड्स चेक हो जाएंगे और एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कोई भी वेबसाइट पर देख के इन चीज़ों को चेक कर सकता है. This was the latest update. I will in the end appeal to all of you to subscribe to my YouTube channel. Also like and share my videos
send your beautiful comments to me and press the bell icon button so that you get my notifications in time. Thank you. Thank you very much. I am signing off.